Hello, my name is Surbhi. My today's topic is about excretory system in human beings. So what are excretory system actually? Excretion means कुछ बाहर निकल रहा है चीज़, ठीक है. Excretory system ऐसा सिस्टम जो चीज़ों को बाहर निकालता हो. Only two things जो आपकी excrete out होती है, that is stool or your urine. Okay, so I'm going to tell you about how does this urine formed and what is urine and किस track के through ये आपका बाहर निकलता है. Okay, so first of all I'll introduce about the urinary tract. What is urinary tract actually? These contain the pair of kidneys, urinary tube, okay, and it is also called as ureter, then urinary bladder and urethra. So what is kidney? These are the main organ where your urine get formed. Okay, then I will give you the further more information about that this kidney. Okay, the main part I will discuss about that, and I will also tell the main structure and functional unit of this kidney. Okay, so these are the pair of kidney where your urine get formed, and after that it will goes from your urinary tube then to the urinary bladder where it get collected, that your urine get collected, and after that it will remove out from your body through urethra. So what are the parts of kidney actually? The upper part, the outermost part is called as renal calyx. Then inner, after that is present in renal medulla. This part is called as renal medulla. I will show you here. This part is renal calyx. From here, this part is renal calyx. Then this one is where your half renal pyramid is present, that is called as renal medulla. Then this pyramid like structure is called as simply called as renal pyramids, where this urine, the millions of nephrons are presented. Okay, and I have already told you that this nephron is the functional unit of the kidney, or this nephron is responsible for the formation of urine. Okay, so after that, after renal pyramid or renal medulla, there is another thing that is called as renal pelvis, where all the urine get collected, and next part is called as, here you can see there, here this is called as renal ileum. Okay, so and then when all the urine get collected in this area, and after that this goes out from here. Okay, now I will tell you about nephron. Nephron is very important. This is very important structure actually, and many examiners have asked about that nephron and about that urine formation. And what are nephron actually? So actually it is the functional unit of the kidney. Okay, and I have already told you there are millions of nephron are presented inside your kidneys. Okay, so I am going to make one nephron here. So this I am making this further. Let me make first, then I will tell you more about. This capsule like part is called as a Bowman capsule. This is called as Bowman's capsule, and these Bowman capsules contains many of capillaries like yes, let me make it more clear. See, this is called as Bowman capsule. This part is called as Bowman capsule, and in this part, there is glomerulus. This is called as glomerulus. Glomerulus is your filter. ठीक है, ये आपके filter की तरह behave करता है actually. Then this is called as afferent arteriole. Afferent arteriole. What are afferent? Afferent from air की ये जो जितना भी afferent means जो पूरी बॉडी से आपका जो ब्लड आ रहा है वो आपका afferent arteriole के थ्रू अंदर आएगा. ओके, देन जो बाहर जाएगा वो आपका efferent arteriole के थ्रू जाएगा. ओके, then after that
You can look at here. I'm going to remove this. See, this is Bowman capsule, and in this glomerulus is present, which act as a filter, and this is the afferent arteriole from where all the deoxygenated blood, or you can say that the bad blood is coming, and efferent arteriole, the blood after filtration will goes out from inside your body again. Okay, then these are the capillaries, blood capillaries. Okay, these are the blood capillaries. And so what is PCT actually? PCT is a proximal collecting or convoluting tubule. In this what is going to happen? So कहाँ पे आपका absorption होता है किडनी का, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है. So that is your PCT, that is called as proximal convoluting tubule. So what I am going to tell you actually, जब भी आपका जो बैड ब्लड है वो फिल्टर होके आपका यहाँ पे आता है तो सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं. ठीक है, सो वी हैव टू नो दैट क्या फ़िल्टर ये करता है, क्या ये फ़िल्टर नहीं कर पाता, ये हमें पता होना चाहिए एक्चुअली. सो जो आपका ग्लोमेरुले है ये आपका अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र कर सकता है नीचे. ओके, ये आपका ग्लूकोज को नीचे भेज सकता है, ये आपका कुछ आयंस को, मैक्सिमम आयंस को ये नीचे भेज सकता है वापस नीचे की तरफ को. ठीक है, पीसीटी की तरफ को. एंड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जैसे आपका क्रिएटिनिन हो गया, अदर थिंग्स. बट ये आपका प्रोटीन को नीचे नहीं भेज सकता बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. ब्लड को नहीं भेज सकता, ब्लड की किसी भी चीज़ को नहीं, कंपोनेंट को नहीं भेज सकता, दैट लाइक WBC, RBC है ना, इन चीज़ों को ये नहीं भेज सकता नीचे. ओके, अगर ये ठीक है, अगर आपका ग्लोमेरुले ठीक है तो ये नहीं भेजेगा नीचे. अगर ये ठीक नहीं है देन प्रॉब्लम हो सकती है, देन आपकी यूरिन में ब्लड आ सकता है, देन आपकी यूरिन में प्रोटीन आ सकता है. ठीक है, वो बात की बात है अगर कॉम्प्लिकेशन है. अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो क्या होगा, जो प्राइमरी ब्लड इसको बोलते हैं, सॉरी प्राइमरी यूरिन इसको बोला जाता है, जो भी आपका पीसीटी में फिल्टर होके आता है आपका ब्लड जो है और यूरिन बनता है आपका, इसको हम प्राइमरी यूरिन की तरह कंसिडर करते हैं. और प्राइमरी यूरिन में बेसिकली आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, कुछ आयंस हो गए एंड मिनरल्स हो गए एंड आपके क्रिएटिनिन हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके इसमें आ जाती हैं. ठीक है, देन आफ्टर दैट क्या होता है आपका अब्जॉर्प्शन. अब यहाँ पे क्या होता है 90% ऑफ अब्जॉर्प्शन हो जाती है. ठीक है, 10% ही इसमें रह जाती है. देन ये अब क्योंकि क्या करना है हमें, वाटर को भी तो ऑब्जर्व करना है, सारे वाटर थोड़ा नहीं नीचे भेजेंगे, वो भी तो हमें ऑब्जर्व करना है. देन उसके बाद क्या होता है, फिर आता है आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस. सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्प्शन कहाँ होती है. ऑब्जर्प्शन होती है आपकी पीसीटी में, बट एक्सचेंज ऑफ आयंस आपके कहाँ होते हैं, लूप ऑफ हेनेले में. सो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पार्ट बनाया है, ये पूरी पाइप जो है एक लूप की तरह जो दिखाई दे रही है, जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनेले. तो एक तो हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनेले और एक हो गया आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनेले. एक्सचेंज ऑफ आयन बेसिकली किस किस के बीच में होगा, तो आपने बस बेसिकली मैंने इसको ऐसे समझा था, आपको भी बता रही हूँ, बहुत ईजी ट्रिक है. आपने बोला जैसे नमक होता है, नमक में ज़्यादा सोडियम होता है. ओके, तो इस तरह से याद रखना है कि पहले नमक बहुत ज़्यादा होगा, देन उसके बाद उसको फिल्टर आउट कर लिया जाएगा. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली जो ब्लड कैपिलरीज हैं एंड आपका लूप ऑफ हेनले है, उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है. एंड कौन कौन से आयन, योर H2O, योर वाटर एंड योर सोडियम. ठीक है, सोडियम और वाटर के बीच में आपका एक्सचेंज होता है, वो इधर से उधर जाते हैं. एक आपका ब्लड में जाएगा और एक वापस आपका लूप ऑफ हेनले में आ जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है. तो यहाँ से क्या होता है, आपका सोडियम अंदर की तरफ को जाता है एंड आपका वाटर इस साइड को आता है. ठीक है, देन उसके बाद जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वहाँ पे सोडियम अंदर को आता है और आपका वाटर जो है आपका ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है वापस. ठीक है, ताकि ज़्यादा जो आपका पानी है वो भी बॉडी से ना निकले. देन उसके बाद डीसीटी है. डीसीटी क्या करता है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत अब्जॉर्प्शन होती है, दैट इज़ इसको बोलते हैं डिजिटल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल. ओके, सो डिजिटल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल में क्या होता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी होता है. यहाँ पे पोटाशियम को और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है थोड़ा सा. देन यहाँ तक जब गाड़ी पहुँच जाती है तो ये आपका दिस इज़ कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. सीटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. सारा का सारा ब्लड जो आपका यूरिन है वो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है. एंड देन उसके बाद पेल्विस में भेज दिया जाता है और देन फर्दर मोर जहाँ पे भी उसने जाना है, जो मैंने ट्रैक यहाँ पे बताया है, यहाँ से वो फिर नीचे की तरफ को आ जाता है और फुली फॉर्म बन जाता है, फुली फॉर्म हो जाता है. ठीक है, सो
दिस इज़ अबाउट किडनी। बेसिक बताया मैंने अभी आपको, इससे और भी डिटेल में बहुत बड़ा ये टॉपिक है, बट ये आज बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अबाउट द यूरिनरी ट्रैक्ट, और यू कैन ऑल्सो से द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द यूरिन। थैंक यू सो मच।